Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the short story A Chip of Glass Ruby by the Nadeem Godimer. Nadeem Godimer is a South African novelist, short story writer and also political activist at the time of apartheid era in 1948 to 1994. That was a time of racial segregation. At that time, South Africa is divided into different races and also divided in different apartments. And the Nationalist Party was ruling at that time, and they divided the people on the basis of white color, black color, and also the Asian color. So according to their color, they were living in their houses in and getting the education opportunities, and similarly they have the same status in the society. Even they are divided in different parts of the cities according to black and the white. Here This story, A Chip of Glass Ruby, is written from the context of the epithet movement or the time of the era. The family, um, Mr. and Mrs. Zainab Bamji, and it's an Indian Muslim family, and they are living in Johannesburg in South Africa. And this story show the resistance toward this movement and the different efforts they are putting for the equality and for getting their rights, same like the white people. So now we will come to the story, and I told you already, written in the setting of Johannesburg, and also the family, Mr. and Mrs. Bamji, and the main characters were um, uh, also like Mr. And Mrs. Bamji, and also their children. Especially, I want to tell you, Mrs. Bamji was the widow, and after the death of her husband, she got married with Mr. Bamji, and the total family members are 11. And so we will further discuss the different points and important elements in the story. A writer wrote this story in the third person, an internal monologue point of view, from the Mr. and Mrs. Bamji point of view. Mostly time it will tell you about the internal monologue of Mr. Bamji, who is thinking about his wife and the different efforts she was putting in this epithet era. If we will talk about the significance of the title, A Chip Glass of Ruby, it's just like a jewelry. If you have seen the Indian people and the women who is wearing the nose pin, the ruby is one connotative meaning is that the jewelry, although it's a traditional style, but the main character and the protagonist of this short story, Mrs. Bamji, was not the conservative, and she was not a traditional lady like that. And she was, you can say, she was the very modern personality, strong woman, and also bright personality. And she always tried to motivate her family, and also she was also very helpful for the other people who are struggling for this epithet, um, and epithet resistance, and they are trying to get the more liberation and more right for the black people. So Mrs. Bamji, what was she doing? She was also doing the printing of different leaflets, and printing material pamphlet that was showing the basic themes of these people who are resisting against this discrimination. And she was also serving the people through the tea, and also giving the shelter to these people. So this is a little bit idea about this story. So we will talk about, further talk about the significance of the title. Mrs. Bamji, what was she doing? She was taking her nose pin out from the nose, and she was thinking about it is too old style even for her, क्योंकि खुद उनको भी लग रहा था ये ओल्ड स्टाइल है. सो उन्होंने उस नोज पिन को उतारा, रूबी के नोज को, जो रिप्रेजेंट कर रहा था एक रिबेलियस एटीट्यूड का वीमेन का अगेंस्ट द ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को. इसके अलावा एक कॉनोटेटिव मीनिंग अब बिब्लिकल रेफरेंस से भी ले सकते हैं, जिसमें जो किंग जेम्स बाइबल है, जिसमें मेंशन किया गया था, हु कैन फाइंड अ वर्चुअस वुमेन फॉर हर प्राइस इज अबव द रूबीज.
सो दीज आर द टू कॉनिटेटिव मीनिंग. मेन कैरेक्टर आई टोल्ड यू जिमी है और उनकी डॉटर है. इसी तरह बिकॉज और गर्ली जो है और जिमी दे आर द चिल्ड्रन of Mrs. Bamji from the first husband, and they are very understandable and obedient children, and they understand their mother, her difficulties. And Gurley is married near next door, and she is pregnant. And one most important thing is that although Mr. Bamji was a traditional conservative mind person, but why he got married with the woman who is not so much attractive, but he was unable to understand that. He thought about her personality, that why then he got it कि she is not like anyone else. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की एक खातून थी जो कि जानती थी कैसे घर को मैनेज करना है, कैसे बच्चों की टेक केयर करना है, कैसे हस्बैंड की टेक केयर करनी है. और मिस्टर बामजी जो कि एक वेजिटेबल वेंडर थे और फूड वेंडर और वेजिटेबल एरिया जो सप्लायर वाला एरिया था, उनमें ये लोग रह रहे थे एक छोटे से घर में जो कि 4 रूम्स पर मुश्तमिल था. इसी तरह दूसरी चीज़ें आप अगर देखें तो मिस्टर बामजी हमेशा सोचते हैं कि क्या उनमें अट्रैक्टिव चीज़ है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो डिपिक्ट द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है जहाँ आदमी की जो कहते हैं ना उसको ही समझा जाए डोमिनेंस होती है. वीमेन को का राइट सिर्फ इतना ही कंसिडर किया जाता है कि दे शी हैज़ टू bear the children and she has to take care of the family, she has to cook food. और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ वही मैनेज, उसका अमल दखल इतना ही है, इससे ज़्यादा से राइट दिया नहीं जाते. सो दीज आर द टू करेक्टर्स एंड कंट्रास्ट मिस्टर एंड मिसेस बामजी. अब अगर हम उसके मुख्तलिफ थीम्स को डिस्कस करें तो फैमिली और रिलेशनशिप के हवाले से कि मिसेस बामजी जो थी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिली को बैलेंस्ड किया हुआ था. इवन कि अगर इस्माइल ब्रदर की इंगेजमेंट पार्टी होती है तो वो अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बावजूद घर के कामों बच्चों की टेक केयर के अलावा भी अपनी फैमिली को हर फंक्शन और हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखती हैं, रिलेशनशिप्स को भी और अपनी जो उनका जो एक पैशन है उसको भी कंटिन्यू कि किस तरीके से एपिथेट मूवमेंट के अंदर रेजिस्टेंस जो लोग कर रहे थे उसमें किस तरीके से उसको भी लेके चलना है और साथ साथ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी और साथ साथ. सो मिस्टर बामजी इन हिज वाइफ पर्सनैलिटी समथिंग स्ट्रगल टू रिमेंबर थ्रू आउट द स्टोरी. यही वो एक ऐसी चीज़ थी जो मिस्टर बामजी को कंपेल करती रही पूरी की पूरी स्टोरी में कि ऑल द शी इज़ वेरी सिंपल पर्सनैलिटी, कोई अट्रैक्टिव नहीं, उनकी बॉडी को इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जो नॉर्मली द मैन आर कंसिडरिंग दैट के वुमेन शुड बी वेरी प्रिटी. एंड उसके जो बायोलॉजिकल या फिज़िकल फीचर्स होता है उस पर फोकस करते हैं. लेकिन वो कहता है कि इसके बावजूद वो जो थे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे मिसेस बामजी, और वो जितने लोगों से मिलती थी वो वेल नाउन लोग थे जो इस तहरीक के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म थे साउथ अफ्रीका के अंदर. इसी तरीके से थीम ऑफ प्रेजुडिस को भी यहाँ पे ऐसा होता है कि जब मिसेस बामजी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से और अपने कहते हैं ना अपनी तरफ से जो एफर्ट्स पुट कर रही होती हैं, इंडियन लोगों को शेल्टर दे रही होती हैं, टी सर्विंग करती हैं, उनको आराम के लिए घर प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ और प्रिंटिंग लीफलेट्स की सूरत में जो है अपना जो मैसेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक कन्वे करती है. तो जो पुलिस की रेड की वजह से उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है उसको भी वो कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें जेल हो जाती है. तो उस हवाले से जब वो उनका जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है अपने टीचर के, यहाँ एक तरह से वो जो है ब्लैक लोगों की साइकी को भी डिपिक्ट कर रहा है राइटर कि वह जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए लिटिल वाइटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती थी. कि लिटिल वाइटनेस का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा भी आपको एज मिल जाएगा दूसरे पर, अदरवाइज सो मच डिस्क्रिमिनेशन इन दैट सोसाइटी, वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. तो मिसेस बामजी जब वो जेल में जाती हैं तो उसके जो टीचर होते हैं बच्चों के वो रेडिक्यूल करते हैं कि मिसेस बामजी जो हैं वाई इज़ शी फाइटिंग फॉर द इक्वलिटी. सो बेसिकली वो जो टीचर को वो कहते हैं टीचर ने भी सारी डिस्क्रिमिनेशन रेशल जो था प्रॉब्लम्स फेस की थी, प्रेजुडिस फेस किया हुआ था जो ब्लैक पीपल के साथ हो रहा था. सो वो ये एज्यूम करता था it's better that he is different or better than the other. If I do it first nobody will be able to do it to me. कि इस तरीके से वो अपनी जो पावर है उस पर शो करेगा और इस तरीके से
वो थोड़ा बहुत जो है राइट्स जो है वैसे ही बिहेवियर, जो जिस तरह वाइट लोग अपनी सुप्रीमेसी शो कर रहे थे उसी तरीके से उसको मौका मिलेगा कि वो अपनी सुप्रीमेसी शो करे। सो उनके लिए ब्लैक के लिए तो जो वाइटनेस जो है डीकोलोनाइज्ड उनके माइंड हो चुके थे, और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे वाइट लोगों के साथ। जैसे कि फ्रांस फेनोन कहते हैं कि डीकोलोनाइजेशन इज साइकोलॉजिकली जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट कर लेते हैं कि जो लोग होते हैं वो खुद अपना मास्टर चूज करते हैं और विलिंगफुली अपने ट्रेडिशन कस्टम और अपनी हर चीज़ को वो फॉरगेट कर जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी उसकी माइंड से ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है। इट शोज द प्रॉब्लम सोसाइटी बिकॉज ऑफ एपिथेट पॉलिसीज। इसी तरीके से थीम ऑफ जस्टिस को भी देखा जाए कि जो उनकी बेटी थी गार्ले वॉज द प्रेग्नेंट। तो अब वो जो शी वॉर द मॉडर्न ड्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, तो मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक तरह से वो भी रिबेलियस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक ऐसा बेबी जो इस दुनिया में आने वाला है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ औरत को इक्वलिटी के हुकूक हासिल नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी सिम्बलाइज कर रही है कि एक न्यू चेंज, जो पुरानी ट्रेडिशंस के खिलाफ लोग खड़े होंगे, स्पेशली औरतें, ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Fighting for justice and standing up for what they believe in and follow. New generation female like Garley will not follow the norms and values of patriarchal society. ठीक है, and yet to be born baby is a symbol of new life and new beginning of the society. इसी तरीके से political activism के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जब वो हेल्प आउट कर रही होती हैं इस तहरीक के अंदर, मुख्तलिफ लोगों की उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती हैं, टी सर्विंग कर रही होती हैं, उनकी हेल्प आउट प्रिंटिंग वगैरह की। तो मिसेस बाम जी की जो स्ट्रगल है उसको मिसेस बाम जी जो है जब ये सारी हेल्प आउट कर रही हैं तो मिस्टर बाम जी जो है वो उसे मना करते हुए एक नॉर्मल कामफुल लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि किसी भी किस्म के फजूल से प्रॉब्लम्स में अपने आप को स्ट्रक किया जाए। एक ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड फैमिली उसकी तरह लाइफ गुजारना चाह रहे होते हैं। सो जब वो अपनी वाइफ को समझाते हैं तो वो आगे से मिसेस बाम जी कहती हैं, व्हाट्स द डिफरेंस यूसुफ, वी हैव ऑल गॉट द सेम ट्रबल्स, कि हमारे प्रॉब्लम्स एक ही हैं, हमारा मसला एक है कि हम इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट, ब्लैक एंड एशियंस को सेग्रीगेट कर दिया गया था। इवन उनके अपार्टमेंट्स, उनके रेस्टोरेंट्स, उनके बसेस, उनके ट्रेन्स, उनको कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हासिल ना थी जैसे कि वाइट लोगों को हासिल थी। सो इवन के लोअर क्लास जो जॉब्स थी, जो कि स्वीपर्स हैं, मेड्स हैं, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी विल फाउंड इन दिस स्टोरी। और इसके अलावा अदरिंग ऑफ वुमेन इन द अफ्रीकन सोसाइटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थीम के हवाले से है कि मिस्टर बामजी अब जब अपनी वाइफ को देखते हैं तो बहुत ही उन्हें डिग्रेड, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। और जब वो जो प्रिंटिंग कर रही होती है लीफलेट्स को, और जो पम्फलेट उस ज़माने में कर रही होती है 1948 88 का जो टाइम पीरियड है, तो वो अज्यूम करते हैं ये प्रिंटिंग नहीं कर रही बल्कि ऐसे कर रही हैं जैसे एज इफ़ शी वर पाउंडिंग ए चिलीज, जैसे वो अपनी सिलबट्टे के अंदर कूट रही हैं। वो इतना डिग्रेड करते हैं, उनके नज़दीक उनकी वाइफ इतनी जो है कमतर वो कंसिडर करते हैं, हकीर समझते हैं। और वो कहते हैं कि हर बॉडी वॉज अ स्कार्जी अनइम्पॉर्टेंट एज अ ड्रेस ऑन द बैक व्हेन इट वॉज होस्ट टू अ चाइल्ड। ठीक है, और उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है मिसेस बामजी में। ठीक है, मिस्टर बामजी इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट वुमेन रोल इन द प्रोक्रिएशन, ठीक है, कुकिंग, चिल्ड्रन, टेकिंग केयर एंड also the look after of the house. And when she was arrested and she went to the jail, Mr. Bamji was thinking why she struck the whole family in the problem. She has to keep herself away from such troubles. Wife didn't receive any support from him except she didn't stop her political activities. अगर सिंपल के हवाले से अगर देखें तो अच्छी ऑफ क्लास रूबी सिम्बलाइज करती है मिसेस बामजी की एक ब्राइट शाइनिंग पर्सनालिटी, एक ब्राइट स्पिरिट है उनकी, स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल वुमेन है, और इसके अलावा एक बहुत ही मोटिवेटेड किस्म की मदर हैं और एक्टिविटिस्ट जो अपनी डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर जो है सर्वाइव करती हैं। इसी तरह डुप्लिकेटिंग मशीन सिम्बलाइज कर रही है कि टू पॉइंट ऑफ व्यू, जो मिस्टर और मिसेस बामजी के दोनों के डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिपिक्ट कर रही है, और सिमिलरली हमें ये भी बताती है लिटिल फिगरेटिव मीनिंग के हवाले से कि किस तरीके से हम जो हैं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट
जो है उसको भी डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि लीफलेट्स जो होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर लेट द नेटिव हैंडल देयर प्रॉब्लम्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मिस्टर बामजी के माइंडसेट को, उनकी इंटरनल मोनोलॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और मिसेस बामजी जो हैं वो कहती हैं कि किस तरीके से आप, पिछले जैसे हमने थीम में डिस्कस, वो कहती है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम यूसुफ, वी हैव गॉट ऑल द सेम ट्रबल। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। और दूसरा जो है रेजिस्टेंस को शो कर रहा है कि एक रिबेलियस एटीट्यूड जो अवाम का है अपनी गवर्नमेंट नेशनलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। द येट टू बी बोर्न बेबी, इट्स अ न्यू चेंज, न्यू आइडिया इन द कंजर्वेटिव सोसाइटी विच विल थिंक in a positive way about the women, and will give the right to the women to decide what is good for them and what is right for them. Like Mrs. Bamji, she wants to be an activist, and she want to taking part in the resistance against the apartheid movement. So it's also the new change and new start for the women. Leaflets caption symbolize, also represent the struggle of the rebellious people against the apartheid policies, like Mrs. Bamji, and who were jailed, and caption about the burning passport for freedom, and portrays that they are not going to work. कि बर्निंग ऑफ पासपोर्ट जो है, बेसिकली जब आप अपने पासपोर्ट को बर्न आउट कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है। और आप अपना जो कहते हैं ना, आप डिसीजन और अपना फर्म जो कन्विक्शन है उसको शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।